পুজোর চাঁদার জুলুমবাজি এবং দন্ত চিকিৎসকের বাড়িতে হামলার ঘটনায় আগরতলা উদীচী ক্লাবের পুজো বন্ধ করে দিল প্রশাসন। সম্প্রতি আগরতলা শিবনগরস্থিত এক দন্ত চিকিৎসকের বাড়িতে দুর্গাপুজোর চাঁদা, জুলুমবাজি এবং দন্ত চিকিৎসকের বাড়িতে হামলার ঘটনার পর আগরতলা শিবনগরস্থিত উদীচী ক্লাবকে পুজোর অনুমতি দিল না প্রশাসন। রবিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে। তিনি আরও জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে যে কোনো বিষয় নিয়ে যারা গুজব রটাবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। আসন্ন শারদীয়া দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে যাতে কোনো অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন। গত বছর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পুজোর সংখ্যা ছিল 889। এবছর দুর্গাপুজোর সংখ্যা 900। দুর্গাপুজোতে যাতে সব ক্লাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য সকল ক্লাব কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। এদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার জানিয়েছেন, বাংলাদেশের কোনো ঘটনা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তকর বিষয় নিয়ে যাতে কেউ পোস্টারিং বা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার না করা হয়। বিভ্রান্ত ছড়ালে পুজোর আনন্দের উপর প্রভাব পড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকতে হবে সকলকে। কেউ আইন লঙ্ঘন করলে প্রশাসনিকভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। শ্বশুরবাড়ি শিবনগর। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে ডক্টর পূজা দাস, আমার হাজব্যান্ড ডক্টর প্রীতম দেবরাজ। আর সকাল সকাল আমরা সবাই ঘুমিয়ে আসি, তো অনেকবার বেল বাজাইছে। তখন আমি উঠছি না, আমার শাশুড়ি মা উঠে সেরে গেছে, গেট খুলে সেরে দেন শাশুড়ি মা দেখছে কিছু 4-5 জন লোক আইছে। হ্যাঁ, তো তারা চাঁদার লিখে আইছিল, দুর্গাপূজার চাঁদার লিখা। তো তারা কইতাছে যে চাঁদা দেন। কত লিখছে চাঁদা? কত? 1,500। হ্যাঁ, 1,500 একটা লেখা দিয়েছে। তখন কইছে গত বছরও তারা অনেক কিছু কইছে, অনেক চেঁচামেচি করছে। তো তারপরে দিয়ে আমার শাশুড়ি মা কইছে হ্যাঁ এত তো দিতে পারতাম না, যতটুকু সামর্থ্য আছে আমি দিয়া দিতেছি। আমরা কিন্তু করছি না। তো কইছে 500 টাকা ধরা দিয়ে কইছে 500 টাকা নেন, ব্যাস এই মার নামে এই টাকা দিলাম। তো তারা বলছে না, এই টাকা হইতো না, গত বছরও যত টাকা লিখছি 1700-এর মতো টাকা লিখছে, এই টাকাও দিতে লাগবো, এবারে 1500 টাকাও টোটাল মিলে দিতে লাগবো, 3-4 হাজার টাকা দিতে লাগবে। তো আমরা বলছি না, এত টাকা তো দিতে পারতাম না। শাশুড়ি মা করে তো পারতাম না, 500 টাকা হইলে নো, নাহলে এর থেকে বেশি বাবা আমি দিতে পারতাম না। তারপরে দিয়া তারা ভীষণ চেঁচামেচি করতেছে, আমরা শুনছি না কি হয়েছে, তখন আমি ঘুমিয়ে আসলাম। তখন আমার দেওর গিয়া সেটা তারা ধরছে। হ্যাঁ, তার সাথে কথা কইতে আসছে। এমনি মানে তারা কোথা থেকে এসেছে? তারা উদীচী ক্লাবের সদস্য, মেম্বার সদস্য, তারা 5-6 জন আসছে। নাম জানি না, তারা উদীচী ক্লাবের আমাদের পাড়ার আর কি। এখন আপনারা থানাতে ওর বিরুদ্ধে মামলা করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মারধর হয়েছে। আমার হাজবেন্ড আমার শাশুড়ি মারে ধাক্কা দিয়া, এভাবে একটা মহিলারে কিভাবে পুরুষ মানুষের ধাক্কা দিতে পারে আমি জানি না। এমনি করে ধাক্কা দিয়া সেটা তারা ভিতরে ঢুকতে আসলো। তখন গিয়া কয় কি হয়েছে, আমার মারে কেন ধাক্কা দিছো তোমরা? কয়ে টাকা দে, নাইলে এই পাড়াতে কেমন থাকস করা আমি দেখাই দেবো। এমনি কইছে। তখনই গিয়া শুনছে, হ্যাঁ আমার হাজবেন্ড শুনছে পরে দিয়া দাঁড়া। এবার গতবার পুলিশ কমপ্লেন করছিল, ঠিক আছে। তো এইবার আমি দেখালো, আমি আগের বার তো কোনো কিছু লইতে পারছি না ভিডিও, এইবার আমাকে প্রমাণ রাখুন যাতে দেখাইতে পারি পুলিশে। তো নিয়ে গেছে প্রমাণ, ভিডিও রেকর্ড করতে আসলো। আর তারা হাতাপাই করে হেরে ঘুষি মারছে। ফোনটা নিতে গিয়ে হেরে ঘুষি মারছে, না নোজ ব্লিডিং হয়েছে, হেরে আইসি দেখাই আনছি। আর আমার হাজবেন্ডরা আইসে এখানে। হ্যাঁ, কথা বলে। जैसे फिर आपको पता है कि दुर्गा पूजा जल्दी आने वाला है, तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट्स किया है इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। 2023 में टोटल पूजा अराउंड 889 पूजा था। इस बार भी हम लोग अराउंड 900 पूजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमें 248 एप्लीकेशंस आया है। और इसका दुर्गा पूजा में हम लोगों ने अभी सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ किया है। डीएम सर भी रहेंगे ट्यूसडे, उसको हम लोग पूरा क्लब के साथ मीटिंग करेंगे। अब सब डिवीज़न लेवल, जो ओसी लेवल, सब डिवीज़न लेवल सभी ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें हम लोग इस बार भी लास्ट ईयर की तरह से फिक्स पिकेट्स 253 फिक्स पिकेट्स दे रहे हैं। और उसके बाद CCTV 30 CCTV कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं। और पुलिस असिस्टेंस बूथ 60 होंगे, वॉच टावर्स 30 होंगे, ड्रॉप गेट्स 25 होंगे।
और लास्ट टाइम लगभग 1300 TSR डिप्लॉयड था। इस बार भी इतना ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा पूरा पुलिस फोर्स भी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड होगा। और अभी जो आप लोग सुन रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का एक दो केस आया है उदीची क्लब में, उसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इमीडिएटली हमने केस लिया है और 2 लोगों को नोटिस लेके बुलाया है और अभी डिसीजन लिया है कि उनको पूरा पूजा का परमिशन ही हम लोग नहीं दे रहे हैं। उनको पूजा करने के लिए परमिशन डिनाई कर रहे हैं। और भी इमीडिएटली हम लोगों ने मीटिंग करके सभी क्लब सेक्रेटरीज़ को वार्न किया कि ये फोर्सफुल एक्सटॉर्शन जो है हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। ये इवन ऑनरेबल सीएम सर से हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि एक्सटॉर्शन केसेस को बहुत स्ट्रिक्टली डील करना है। ऐसे ही हम लोग अभी मैसेज भी दिया है और सभी को अभी थ्रू OCPS, SDPO, एडिशनल SP, SP एंड इवन DM साहब भी अभी हम लोग फुल डिस्ट्रिक्ट मीटिंग करेंगे। उसमें भी हम लोग स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि जो भी एक्सटॉर्शन का कोई भी कंप्लेंट आएंगे हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट डील करेंगे इसमें। और इस बार जनरल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन में मैं बोलना चाहता हूँ, वो भी पूरा सभी हेड्स में लास्ट ईयर को लेके इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में हम लोगों ने बहुत सारा सक्सेस मिला है। 2023 में 220 केसेस हुआ था प्रॉपर्टी ऑफेंस। अभी तक 2024 में 153 केसेस हुआ है, बहुत कम हुआ है। उसमें सॉरी 83 केसेस हुआ है। ये दूसरा था प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, अभी तक 83 केसेस हुआ है। 2023 में 108 था, तो बहुत कम हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी 101 प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया है और रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी उसको भी 15 लोगों को अरेस्ट किया है और टोटल अमाउंट 41,10,260 रुपीज़ ये स्टोलन अमाउंट है। ये टोटल वैल्यू इतना हमने रिकवरी किया है। NDPS में भी अच्छा कैसे कल भी हमने बहुत बड़ा सीजर किया है गांजा का 355 किलोस और इसमें कन्विक्शन रेट भी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा है, 66.67% है 2024 में NDPS रेट का केसेस का कन्विक्शन। 2023 में भी 33% था, इस ईयर और भी बढ़ा है। जनरल कन्विक्शन भी डिस्ट्रिक्ट का अच्छा है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन है केसेस में। हार्ट एंड असॉल्ट केसेस में भी 50% रिडक्शन है। ये ओवरऑल क्राइम सिचुएशन है। आप भी देख रहे हैं और मीडिया अथवा सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें मिल रहा है कि कई जगहों पे जो डोनेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है पूजा के लिए, इसके लिए लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है और हाईलाइटेड 2-3 केसेस भी अगरतला में हुए हैं और कई जगहों पे और भी देखा गया है कि इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को बताने की कोशिश करूंगा कि जो सरकार और प्रशासन इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जो भी क्लब या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है और हम आपसे श्योर करते हैं कि ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूजा की व्यवस्था नहीं करने दी जाएगी जो इस तरह के इलीगल या प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके पूजा का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा साथ देंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि लास्ट कुछ दिनों में देखा गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कई तरह के प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं जगह जगह पे। मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि ये पूजा का समय है, इसमें हमारे कई बिजनेसमैन, कई कस्टमर्स, कई कंज्यूमर्स अपनी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोग बाज़ार में आएँ, सामान खरीदें और एक इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट होती है कई लोगों की। तो मैं सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और सभी ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तरह की वो एक्टिविटी करना चाहें, चाहे प्रोटेस्ट हो, सिटअप्स हो, उसमें प्लीज़ मार्केट एरिया को अवॉइड करें ताकि जो बिज़नेस का जो माहौल है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सीज़न है ये 1 महीने का है। इस 1 महीने में जो बिज़नेस का माहौल है इसमें कोई ख़राबी ना आए और हर नागरिक अपने घर से और जब बाहर निकले तो उसको व्यवस्था मिले सड़कों पर। ऑलरेडी हमारा जो बहुत सारा गवर्नमेंट स्टाफ है वो लीव पे है या लीव लेगा, क्योंकि इसी टाइम पे हम लोग सभी घरों में लीव लेते हैं और पूजा को मनाते हैं। तो इसमें हमारी मदद करें और जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, डिमांड्स हैं, ये प्रशासनिक तरीके से हम पूरी करने की कोशिश करेंगे।
और मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह के स्ट्रीट प्रोटेस्ट को अवॉइड करें और आके हमसे डायरेक्टली बात करें ताकि एक पूजा का माहौल बना रहे। दूसरा है कि इसी माहौल में कुछ लोग पोस्टर्स चिपका रहे हैं एनिमिस अपनी पर्सनल एनिमिटी के लिए, जिसकी वजह से समाज के अंदर हो सकता है कि एक्शन रिएक्शन के माध्यम से और व्यवस्था ख़राब हो। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह का ऐसा कैंपेन जो वेरीफाइड ना हो उसके लिए आप लोग प्लीज़ पोस्टर अवॉइड करें या सोशल मीडिया अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में भी उस तरह की व्यवस्था नहीं है और कई लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। ये फेस्टिवल का टाइम है, एक महीना आप अपने अपोनेंट को अगेंस्ट में जो मेलाइनिंग का ये जो कैंपेन है इसको रोक सकते हैं, ताकि हमारी व्यवस्था में हमारी सुचारू रूप से चलने में जो हम चाहते हैं लोगों को हम सर्विस दे सकें उसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, मैं पूजा कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है पुराना कि वो लोग बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, तो आने वाले जो पूजा है उसमें चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या किसी भी तरह की अव्यवस्था हो जिसमें कुछ लोग नशे में आके तंग करते हैं बाकी नागरिकों को, अथवा साउंड रिलेटेड जो समस्याएं हैं डीजे की है, उसमें भी प्रशासन का साथ दें। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम लोग बहुत सुचारू रूप से उस पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों में कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें हमें और सजग होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम सभी के साथ मिलके सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हम अवश्य ये श्योर करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने, आने वाले कितने भी दिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये कंप्लीट कंट्रोल में रहे और हमारे नागरिकों को एक व्यवस्थित व्यवस्था मिले ताकि वो बाहर आके और पूजा का आनंद ले सकें।